ایز فار ایز انسٹرکشنز آر کنسرن، آپ خیال میں اس میں کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہی کتاب ہے جو قرآن کی، قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، مہربانی، اس میں کافی ہدایات ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ساری نہیں ہے نا، یہ بیس کافی نہیں۔ دیکھیں بیس سورس تو وہی ہے، آپ ساری سے کیا مراد لیں گے کہ بھی آج کے دور کی بھی اگر ہم ساری وہ سائنسی جو ہے نا معلومات سب کچھ ہے کہ نہیں، کنسٹرکشن کے کیا معاملات ہیں وہ روز وہاں درج ہیں کہ نہیں، وہ تو نہیں ہے، لیکن گائیڈ لائنس ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے گائیڈ لائنس بتائی ہیں اس لحاظ سے باقی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیسٹ میں ڈالا ہے کہ بھئی اپنی عقل استعمال کرو۔ اور آج میری صبح کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، اور یہ عمومی طور پہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ وہ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نفسیات کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میں نے کہا کہ یار جس طرح یہ کی نفسیات کی کیسے بات مینٹیلٹی لے کے جائے، جس طرح کی مینٹیلٹی لے کے جائے اس طرح کا ہی نالج حاصل کرے گا بھائی۔ جس طرح کا انسان اپنی ذہنیت یا ذہانت لے کے جائے گا اور اس لمیٹڈ معلومات ہی گھسیڑنے کی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس پر ہو تو الگ بات ہے کہ بھئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت ہی دینی ہے تو جس طرح کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو انتہائی خلاف تھے اسلام کے، قرآن کے، مذہب کے، رسول کے، اور انہوں نے جب قرآن پاک پڑھا ہے تو بھائی وہ خود بھی مسلمان ہوئے اور سرعام کہتے ہیں کہ جناب بالکل ہم تو پریسٹ تھے، ہم تو جو ہے نا فادر ہوتے تھے، منسٹر ہوتے تھے اپنے میں عیسائیت میں اور ادھر یہودیت میں اور قادیانیت میں اور ادھر ادھر، تو کہتے ہیں ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، ہمارے جو آباد ہمیں ملے ہیں اور ہمیں سیدھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے۔ اور کتنے ایسے مسلمان بھی ہیں جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں لیکن ہے کہ وہ اپنا یقین نہیں رکھتے بھائی، اپنا وہ کہتے ہیں یہ ہے کیوں وہ کیوں یوزر بھائی آپ سب کیا کریں۔ احادیث کو لیتے ہیں آپ؟ ہاں جی میں بالکل یقین ہے میرا، لیکن ہے کہ احادیث شریف کا بہت بڑا مجموعہ ہے، ایک بہت بڑا سمندر بے کراں ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے اندر میرا نالج محدود ہے، تو لیکن یہ ضرور ہے کہ کیونکہ کچھ قرآنسٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم احادیث کو کبھی کنسیڈر ہی نہیں کرتے، تو میں صرف بھی کلیئرٹی چاہ رہی ہوں کہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ نہیں وہ دیکھیں نام ماننا تو وہ کہنا جس نے پڑھ لیا اور وہ اس نے سمجھ بھی لیا، وہ سب کچھ کر لیا ہو اور اس کو کوئی ثبوت مل گیا ہو یار ساری غلط ہے، وہ تو پھر الگ بات ہے بھائی، وہ تو پھر اس کا بلیف تو اس بات پہ ہونا چاہیے نا کہ اگر وہ اس نے پڑھی ہی نہیں ہے اور ویسے ہی کہہ رہے جی میں نہیں مانتا جی، تو وہ تو پھر اپنا زیادتی ہے اس کی بھائی، جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں بحث کرنی ہے۔ ہاں جہاں تک نالج ہے اس حد تک ہے کہ اپنا نالج ٹیسٹ کریں، بات کریں تحمل مزاجی سے اور نتیجے پہ آئیں ایک پہ۔ اچھا قرآن پاک کی آیت، پہلی آیت الحمد کی جو ہے الحمدللہ رب العالمین، جی جی اس کا آپ ترجمہ کریں ذرا۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ آپ نے کیا پڑھ لیا؟ کیا اس کا ترجمہ تو سب کو پتہ ہونا چاہیے میرا خیال ہے۔ ڈسکس کر رہے ہیں نا، مطلب آپ میں ٹیسٹ نہیں لے رہی، آپ کا ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو مطلب آپ بتائیں آپ کے لیے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ بہن وہی ہے جو لکھا ہوا ہے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اچھا جب یہ عالمین کا لفظ یہاں پہ آیا تو اس وقت آپ کے خیال میں لوگوں کی عالمین کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی کہ عالمین کیا ہوتے ہیں؟ اب اس وقت لوگوں کی کیا تھی وی ڈونٹ نو، وہ جس حد تک نالج ہے ہمارا آپ کے خیال میں لوگوں نے پوچھا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہوگا؟ میں بھی یقیناً پوچھا ہوگا جی، کچھ نہ کچھ بات چیت تو ہوئی ہوگی کہ بھئی یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یوں کیا ہے، فلاں کیا ہے، بہت سی چیزیں کلیریفائی ہوئیں، بہت سی چیزیں جو ہے نا اس وقت کلیریفائی نہیں ہو سکیں، سمجھ جتنی بوجھ تھی، جتنا نبی نے بتایا، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانا چاہا وہ اس وقت تک کے لحاظ سے تو اتنا ہی تھا، اور ہے کہ وہ بہت سی آیات میں یہی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا علم دیکھنا سمندر کے لحاظ سے اس میں نالج اتنا زیادہ ہے کہ ایک ایک آیت کو بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کئی پہلو نکلتے ہیں، اور کئی وقتوں تک، آنے والے وقتوں تک ان کی جو گہرائی ہے وہ بھی دیکھنی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی، سامنے آتی رہے گی۔ تو میرا اسٹانس یوزر بھائی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو خود سے کمپلیٹلی نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمارے پاس ایک گائیڈنس اس کی نہیں موجود جس کو اس پوری کتاب کا علم ہے۔ صحیح ہے، جس میں اگزامپل یہ ایک دے دی میں نے آپ کو کہ بھئی اس وقت عالمین کے لوگوں کو معنی نہیں پتہ ہوں گے جب تک رسول اللہ نے ان کو معنی نہیں بتائے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ایسے ہی ہے جی جی ایسے ہی ہے۔
रसूल अल्लाह के विसाल के बाद आपके ख्याल में वो कौन है जिनके पास पूरी किताब का इल्म है? क्योंकि किताब की समझने की ज़रूरत हर दौर में मौजूद है, क्योंकि ये किताब हर दौर के लिए है। और हम जैसे कि देखते हैं कि जितनी हमारी दुनिया एडवांस होती जाती है, उतनी ही कुरान की ज़्यादा समझ आती जा रही है लोगों को, और चीज़ें खुलती जा रही हैं। जी जी। तो आपके ख्याल में कोई ऐसा होना चाहिए जो कि हर दौर में मौजूद हो, जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो? उसके होने की अगर ज़रूरत कोई ऐसी थी तो उसका भी जिक्र कुरान पाक में होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने यकीनन लिखा ही होगा कुरान पाक में कि जनाब ये देखो मैं ये किताब उतार रहा हूँ और ये तुम लोगों में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि इस किताब को समझे, और तुम लोग सारे के सारे जो है इंतहाई इन्फीरियर को मखलूक हो, और फिर मैं कोई स्पेशल एक बंदा भेजता रहूँगा, उससे सुनते रहना और वही बताएगा तुम्हें। फिर जी, या कुरान इसका में कोई जिक्र है कुरान पाक में? रासिखून फिल इल्म का जिक्र है जी काज़मी साहब। ये तो यूजर भाई जिशान भाई इसके ऊपर या बाबरमान सर आयतों के साथ आ जाएगी। मैं तो इतना कहूंगा कि तो बड़ा वाज़ेह कर दिया अल्लाह ने कि जहाँ पे भी जो है एम्बिग्विटी आपको नजर आए, या जहाँ पे भी जो है आपको जो है वाज़ेह दलीलें के साथ भी आए, तब दोनों सूरतों में आपको जो है रासिखून फिल इल्म अहले जिक्र के साथ होगा, और वो आपको बताएगा इसके बारे में कि इसको सिमिलैरिटीज जिसे हम एम्बिग्विटी कहते हैं, क्योंकि हर दौर की, जैसे कि अभी आपने फरमाया, हर दौर की एम्बिग्विटी डिफरेंट है। एक वक्त में ऐसा था कि जैसे कि अब 1000 ईयर्स पहले ले लें या 1500 साल पहले ले लें, तो जो वर्बल दलील होती थी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती थी। आजकल के दौर में इंपेरिकल डाटा सबसे स्ट्रांग हो गया है। तो उस वक्त अगर आपको एक दलील दी जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाज की बुनियाद पे है। मालूम हुआ कि वक्त ने चलते चलते जो है, जो जितना जमाने इवॉल्व हुआ, इंसान की अकल, टेक्नोलॉजी, साइंस आती रही, तो प्रूफ और एविडेंस के जो जो मराहिल हैं वो भी बदलते रहे। तो आज के दौर में जब कुरान की रासिखून की तरफ मुझे एक एम्बिग्विटी जो है वो आएगी मेरे सामने, तो मुझे तो कुरान कहता है कि रासिख की तरफ जाओ। और फिर इसके ऊपर भी आयतें आपको वो बता सकते हैं, निशान भाई भी हैं, बाब इमान सर भी हैं, मेरे जेब में सभी ही हैं। तो ये तो कुरान का फैसला है कि आपको जो है ढूंढना पड़ेगा इसमें कि ये किसकी बात हो रही है, और इन लोगों की तरफ आपको रुजू करना पड़ेगा जो आपको समझाएंगे। जी जनाब। बिल्कुल काज़मी सैयद, ये सूरह आल इमरान की 7 नंबर आयत है जो आपने कोट की। पढ़ दें, पूरी आयत पढ़ दें। 151 भी पढ़ना। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, लेकिन सबसे पहला तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने खुद ये दावा किया ना, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, कि इस कुरान में जो तावील इस कुरान का कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कर सकते हैं, और रासिखून फिल इल्म कर सकते हैं। और इसमें मुतशाबिहात भी है, मुहकमात भी है। फिर इनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम तो खुद समझ नहीं रहे हैं ना। तो इसके लिए रासिखून फिल इल्म वो लोग हैं जो इल्म में रासिख हो, जो हर किस्म के इल्म रखते हैं। तो फिर इसके लिए आपके यहाँ कौन है, किसके पास जाना पड़ेगा मेरे भाई? वो काजी सैयद का सवाल ये है। जी सैयद, आपने क्या फरमाया? कौन सी आयत पढ़ूं? बकरा की 151। अच्छा, सूरह बकरा की 151। तो भाई इन आयात को सुनना अभी, ठीक है? जी। ये सूरह बकरा की 151। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व यज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। वही आयत है सही है? ये आयत है बिल्कुल। जी, जिस तरह मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयत सुनाते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी को सुनवारता है, मतलब तुम्हारी नापाक नफूसों का तज़किया करते हैं, और किताब व हिकमत की तालीम तुम्हें देते हैं, और हिकमत की बातें सिखाते हैं, ताकि तुम तो नहीं जानते थे ना इन चीज़ों को, इसलिए मैंने भेजा रसूल तुम्हारे दरमियान में। जी बताएं। सूरह आल इमरान की 164 पढ़े।
यूजर भाई मैं यहाँ जब तक वो दूसरी आयत को पेश करते हैं ना, पहली आयत के ज़ैल में एक सवाल रख रहा हूँ, ठीक है? जी मैंने पेश किया, मैं म्यूट था सैयद। लक़द मनल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ा बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालों पर अल्लाह ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनके दरमियान खुद अल्लाह ने ऐसे पैगम्बर उठाए जो इस आयत यानी ये आयत उन्हें सुनाई, उनकी ज़िंदगियों को अच्छी ज़िंदगियाँ बना देते हैं और उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं, हालांकि उससे पहले ये तमाम के तमाम यानी खोली हुई गुमराही में थे। इन दो आयात से यूज़र भाई अभी तक जो बात समझ आई है कि जो कुरान को लेके आने वाला है, जो कुरान का वारिस है, वही बताएगा, और अल्लाह ने उसका वाज़ेह ऐलान कर दिया है। अगर ये कुरान हर बंदे को खुद ये किताब समझ आ जाती तो फिर खुदा को ये हुक्म देने की ज़रूरत ही नहीं थी कि मैंने तुम में एक रसूल रखा है जो तुमको किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुमको तुम्हारा तज़किया नफ्स करता है। अगर ये सारी चीज़ें मैं और आप खुद ही कर सकते तो अल्लाह को फिर इस रसूल को रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी दो आयत भाई ने पढ़ी हैं, एक सूरह आले इमरान की और एक सूरह बकरा की। अभी सूरह हज की आयत नंबर 2 को अगर पढ़ें ज़ीशान भाई तो वो भी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। बस मुझे सिर्फ दो मिनट और दे दो, ये कस्टमर टॉक कर रहे हैं। जी कोई बात नहीं। जी यूज़र भाई क्या आप कहेंगे इसके मुतालिक, आप बिस्मिल्लाह। तो इसमें ये जो आप पढ़ रहे हैं, क्या इसमें ये पहलू कहाँ है कि जी के सिर्फ ये बताएंगे जी कि और बाद में आपने कभी कोई अकल इस्तेमाल करनी है और कुछ भी नहीं है जी, करनी है और कुछ भी नहीं है जी, जिक्र हुआ है ना इन आयात में कि आप जी मैं आयत पेश कर देता हूँ उसके ज़ैल में भी जो आपने सवाल उठाया है। बताई हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो हमने जो आयत अभी पढ़ी कि भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला का इस कौम पर एहसान है कि उन्होंने कि खुद उन्हीं में से एक रसूल उठाया जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो आयत सुनाता है तुम्हारी वगैरह जो है ना, तुम्हें तुम्हारी अंदर किताब और हिकमत और दानाई की बातें सिखाता है। तो ये तो उस वक्त की कौम के बारे में भी हो गया कि भी उनकी जो उस वक्त की बुराइयाँ थी उनको दूर किया, सब मसाइल को दूर किया उस इल्म के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिया था कुरान पाक। और कुरान पाक के बाद जो है कि भाई कि आगे ये है कि भाई कि उन्होंने जो सब फरमाया सिखाया वो कुरान पाक किया ना, तो और आगे जो नस्लें जो आनी हैं उनके बारे में ये तो नहीं है कि भाई कि वही तुमने नहीं पढ़ना भाई, तो वो भी तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही कहा है ना कि भाई इस कुरान को पढ़ो, भाई ये जो अल्लाह ताला का इल्म आया है मेरे पास, इसको पढ़ो, इसको सुनो समझो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार जो कहा अफला ताक़िलून अफला तदब्बरून, तो वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं कह रहे थे कि आप अकल क्यों नहीं करते, आप तो मेरे भाई फिर आप एक आयत को मिस कर रहे हैं, उस आयत को भी पढ़ ले साथ में कि जो मेरा रसूल दे वो ले लो, जिससे मना कर दे रुक जाओ। किस आयत की बात कर रहे हैं आप? मैं दे देता हूँ आयत। जी भाई वो सूरह हशर की आयत का बात कर रहे हैं सैयद, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। जी 7 नंबर आयत सूरह हशर। जी सूरह हशर की 7 नंबर। जी यूज़र भाई ये आयत है। जी एक मिनट तो ये आयत में मुकम्मल तो मेरे ख्याल उस माल के बारे में बात की जा रही है ना कि भाई कि जो कुछ भी अल्लाह इन बस्तियों के लोगों से अपने रसूल की तरफ पलटा दे वो अल्लाह और वो रसूल और रिश्तेदारों और यतामा और मसाकीन और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश ना करता रहे। जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो और जिस चीज़ से वो तुमको रोक दे उससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह सबसे ज़्यादा देने वाला है। ये कॉन्टेक्स्ट तो उस माल का हुआ ना कि जो माल उस वक्त आया होगा आप वसल्लम के पास उन हालात की वजह से,
तो अल्लाह जी ताला जी ने कैटेगरीज भी बता दी अब और मैं फिर आपको साथ साथ कह दिया भी कि जो भी रसूल जी उसको जिस भी कैटेगरी में दे दे वो लें और जो ना दे बस ठीक है ना करें। अभी जो अहकाम यूसुफ शरीयत भैया आप आगे फॉलो सुनिए। कर रहे हैं, एक मिनट ऐसे बिल्कुल, जो अभी आयत नहीं देनी, जी अब कोई आयत नहीं देनी। यूसुफ भाई ये बताएं कि जो अहकाम शरीयत जिस पर आप अमल कर रहे हैं, ये आपके अपने अखज़ किए हुए हैं या किसी से लिए हुए हैं? बिस्मिल्लाह। वेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुरान पाक से ही जो इंफॉर्मेशन आई है उसकी बेस पे ही सारी मालूमात और सारे अमाल मुतय्यन किए गए ना। चले ऐसा करें, मुझे जो है ना ये जो 2 रकत फजर की नमाज है ना, ये कुरान से दिखाएं। बिस्मिल्लाह। आपने नहीं देखी कुरान पाक में नहीं है ये? दिखा दे प्लीज, मेरे लिए आसानी हो आपने जाएगी। नहीं देखी क्या? मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ, नहीं आप मैंने बताते हैं अपनी नहीं आसानियात मैंने नहीं बताते हैं। देखी, इसलिए तो अर्ज कर रहा हूँ ना। मुझे ये पूरा तरीका बताना है कि फजर की 2 रकत नमाज है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, रकू किस तरह करना है, सजूद किस तरह करना है, क़याम किस तरह आपने करना नहीं है, देखा? रकू किस तरह। नहीं नहीं प्लीज आप दिखा आपने दे। नहीं समझा ये? नहीं नहीं आपने नहीं देखा ना, वही कह रहा हूँ ना, नहीं आपने देखा ना देखा भाई। चलो भाई। तो ठीक है, मैं तो आपने नहीं देखा सिंपल, भाई, कोई और बात कर लें। मैं आपसे मुझे नजर आई थी, जानना मैं आपको चाह बता रहा दूंगा। हूँ कि आप जो नमाज पढ़ रहे हैं, अगर ये आयत जो है वो किसी खास टाइम के लिए, खास बंदों के लिए थी, तो अभी मैंने सिंपल सवाल किया है, अभी सिर्फ एक सवाल उठाया है कि जो नमाज आप सुबह की पढ़ रहे हैं, फजर की पढ़ रहे हैं, ये किसी से ली है या खुद अखज़ की है? जी बिस्मिल्लाह। हाँ, नमाज का जिक्र तो सूरह नूर में है ना, सूरह फजर का, कि आयत नंबर 58 मैंने सूरह हशर की, जिक्र आ सुने गया। सवाल दोबारा सुन लें। मैंने सूरह हशर की 7 नंबर आयत पेश की थी और इसमें वाज़ेह हुक्म है, जो मेरा रसूल दे वो ले लो और जिससे मना करे रुक जाओ। तो आपने साबका आयत का पीछे वाला हिस्सा पढ़ के कहा कि ये तो इस आयत के बारे में तो ये हुक्म मिल रहा है। मैंने कहा मैंने आपकी बात को तस्लीम कर लिया कि ये आयत इस झैल में है। तो अभी जो अहकाम शरीयत पर जो आप अमल कर रहे हैं, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें से फ़कत मैंने फजर की नमाज ली। तो मैंने आपसे सवाल किया, क्या ये आपने खुद अखज़ किया है या किसी से लिया है? तो भाई उलमाए कराम जो उस वक्त से अब तक आए, उन्होंने जो मालूमात ली कुरान पाक से और उसके ऊपर अमल किया और उसके ऊपर जो है ना जो रिवायात ली, उनके मुताबिक ही नमाज का सिलसिला शुरू हुआ ना। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नमाज पढ़ी है, जज़ाकल्लाह, यानी आपने तस्लीम कर लिया ना, सिखाई है, वो ये सारे आपने, उलमाए कराम ने सीखी है, आगे आगे फॉरवर्ड की है और वही चल रही है आगे से आगे। यानी आपने तस्लीम कर लिया है ना कि ये कुरान में पूरा तरीका इसका फजर की नमाज का नहीं। नमाज का हुक्म ज़रूर है, लेकिन तरीका नमाज और रकतों का जिक्र फजर की इतनी है, ज़ोर की इतनी है, मगरिब की इतनी है, असर की इतनी है, इशा की इतनी है, ये नहीं बताया गया। ये आपने किसी से लिया है ना। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि फजर की 2 रकत जो आपने नमाज ली है, रकू किस तरह करना है, सजदा किस तरह करना है, रकू में क्या तलावत करना है, सजदे में क्या तलावत करना है, तकबीरतुल इहराम कैसे करनी है, ये सारे का सारा तरीका आपने किसी से लिया है ना। और जिस हस्ती से लिया है वो रसूल अल्लाह है ना। तो अगर वो उस आयत का वही मकसद था जो आपने बयान किया है, यानी कि इंसान ने खुद ही अखज़ करना है हर चीज़ कुरान से, तो फिर ये हुक्म अबस हो जाएगा ना कि जो मेरा रसूल दे वो ले लो और जिससे मना करे रुक जाओ। नहीं तो ये बात टॉपिक कहाँ से आप बीच में ऐड कर रहे हैं भाई? उस आयत की बात उस आयत के बारे में हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे दरमियान जो इंसानों के दरमियान के इस्लाम का पैगाम क्या है, अल्लाह तबारक तआला किस तरह इस अपने दीन को गालिब करना चाहते हैं, उसका अमली नमूना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि उन्होंने प्रैक्टिकली ज़िंदगी जी कर इंसानों के दरमियान इंसानी ज़िंदगी जी कर दिखाया कि भाई ये इस तरह है और ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, जो हुक्म उनको अल्लाह ताला की तरफ से आया उन्होंने उस पर वैसे वैसे अमल किया, साहबा को सिखाया, साहबा ने आगे आगे सीखा, आगे सिखाया, आगे सिखाया, आगे सिखाया, उस तरह से चल रहा है ना। तो ये आपने कहाँ से कंज्यूम कर ली बात कि भाई कि हज़रत सल्लल्लाहु को नहीं मानना चाहिए, सिर्फ कुरान शरीफ को मानना चाहिए? ये टॉपिक कहाँ से आपने सर आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया आप बात को। मौजूद सईदा सिस्टर ने सवाल किया था
کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی جو اس قرآن کو لانے والا ہے جس کے پاس قرآن کا مکمل علم ہے اس سے علم لینا چاہیے یا اس سے لینا چاہیے جس کے پاس قرآن کا مکمل علم نہیں؟ تو اس کے ذیل میں انہوں نے سب سے پہلے سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت پیش کی کہ یہ ایک جو قرآن ہے اس قرآن کے اندر کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، اور جو متشابہ آیات کا علم ہے یہ راسخ فی علم جو ہے ان کے پاس ہے، اس کی تعویل کا علم فقط ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو موضوع تو یہ تھا۔ تو آپ نے پھر ہم نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ کہاں ہے، تو ہم نے کہا کہ ذرا قرآن کی ان آیات کو دیکھیں کہ ایک جو قرآن کو لانے والا ہے قرآن کا سارا حقیقی علم اس کے پاس ہے، تو وہی لوگوں کو بتائے گا قرآن کے اندر کیا ہے کیا کیا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان خود کوشش کرے گا تو اس کی وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ قرآن کا حقیقی عالم وہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جس کو حقیقی قرآن کا عالم بنایا ہے جب تک وہ اپنے علم کو ان تک منتقل نہ کرے تب تک وہ عالم نہیں بن سکتے، نہ وہ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور اگر انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے تو پھر آپ مجھ پر اعتراض نہیں اٹھا سکتے، نہ میں آپ پر اعتراض اٹھا سکتا ہوں۔ پھر یہ قانون دونوں کے لیے برابر ہوگا کہ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو میں بھی سمجھ سکتا ہوں، پھر میرا مفہوم آپ کی نظر میں غلط نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح آپ کا مفہوم آپ کی سمجھ قرآن سے میرے لیے غلط نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کی میری سمجھ بوجھ آپ کے لیے غلط ہے نا تو پھر قانون یہ ہوگا کہ کسی حقیقی قرآن کے جانے والے کے قانون کو فالو کیا جائے گا، تب جا کے فیصلہ ہوگا ہم دونوں میں غلط کون ہے صحیح کون ہے۔ اگر قانون نہیں ہے ہم دونوں نے اپنی مرضی سے سمجھنا ہے، آپ بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں، نہ آپ مجھے غلط کہہ سکتے ہیں نہ میں آپ کو غلط کہہ سکتا ہوں، تو پھر مسلمان آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ یہ ہے اصل مدعا۔ بسم اللہ۔ بھائی دیکھیں، جو بھی نالج ہے جس بھی بیس پہ کوئی ہے اوبویسلی وہ ہم رجوع تو قرآن پاک سے کریں گے، اور وہ رجوع بھی قرآن پاک میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قانون اترا، اللہ تعالیٰ نے جو اسلام مذہب اسلام کی ساری روشنی پھیلائی، وہ تو ہم ان کو ہی رجوع کریں گے نا، ہم مجبور ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی جنہوں نے عملی نمونہ کر کے دکھایا، تو جس حد تک وہ نالج، اور اس سب میں ہے کہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کلیم کیا ہے کہ بھی اس کتاب یہ میرا کلام ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، اور ایزس ہے جیسے ہے میں اس کو جو ہے نا آگے تک پہنچاؤں گا۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا بھی تم زبان جو ہلاؤ یا پڑھ رہے ہو تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو پڑھوا بھی دیں گے، سمجھا بھی دیں گے، اور ان کی ترتیب بھی لکھ کروا دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، اور یہ اس کی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشی مناؤ کہ یہ میں نے کلام تمہارے درمیان چھوڑا ہے، قرآن کے اوپر خوشی مناؤ۔ یوزر بھائی ہم فرض کریں ہم دو بھائی، اس وقت دو بندے ہیں، ٹھیک بات ہے؟ تو پوری سن لینا، بات تو پوری سن لو بھیا، کہ جب یہ بات کی جائے کہ بھئی کہ قرآن مین سورس ہوا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کو وہ چیلنج بھی ہے بھئی اس کے اگینسٹ تو کوئی بات آ نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف کی بھی انہوں نے جیسے اس قرآن پاک کی کو عملی طور پر زندگی گزار کر دکھائی وہ معلومات، تو یہ مین دو سورس یہ ہیں، اور وہاں سے آگے آگے سارے جتنے بھی ہیں وہ سب سیکٹس ہیں، سب سورسز ہیں کہ وہ سب کو بیس ان کو ادھر ہی کرنی پڑنی ہے، اس سے ہی اٹین کرنا پڑنا ہے۔ تو کوئی جہاں تک یہ کہے کہ بھی کہ جہاں تک کہ کسی بھی ٹاپک پہ اگر ہم کہیں کہ بھی قرآن پاک تو ماشاءاللہ کتنی ہی اس کے اندر چیپٹرز ہیں، کتنی ہی اس کے اندر موضوعات ہیں، موضوعات کے اندر سب موضوعات ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو اگر ہم یہی آنکھیں بند کر کے بیٹھے کہ جناب اب تو کوئی آئے گا تو مجھے سمجھائے گا دیٹ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں کہ بھائی صاحب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر کیا گیا ہے، صرف تم عقل کیوں نہیں کرتے، تم سبق کیوں نہیں لیتے؟ بھائی پڑھو تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سیکھو تو صحیح۔ انہوں نے جو کہا یہ فلا تدبرون عقل تو استعمال کرو، افلا تعقلون عقل تو استعمال کرو، سیکھو تو صحیح۔ لیکن اگر ہم آنکھیں بند کر لیں کہ نہیں بھیا بس میں نے کر لی آنکھیں بند، دروازہ بند، اندر سے کنڈی لگا لی میں نے کہ میں نے نہیں سنی جی کسی کی بات، بھائی وہ بھی اپنا اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ واللہ عالم وہ بہتر جانتا ہے کہ بھئی کہ کس کے ساتھ کیا اس نے معاملہ کرنا ہے۔ جی فرض کریں آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں میں کہ اللہ خود ہی آپ کو بھی اصلاح کرے گا اور میری بھی، تو ہم دو بندے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجھے سمجھا دیا ہے،
और आप भी दावा कर रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने समझा दिए, तो हम दोनों पर दलील क्या बनेगी कि हम दोनों को वाकई अल्लाह ने समझा दिए? बिस्मिल्लाह। ये आप कहाँ से कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं कि मेरा क्लेम ये है कि ये अल्लाह ने मुझे समझा दिया, आपको समझा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक उतारा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा, और वही कुरान एज इज़ आज भी हमारे पास मौजूद है। उसी को अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है। अल्लाह ताला ने इसकी प्रिवेंशन का, इसकी सेफ्टी का, इसका ताहयात इस दुनिया में कायम रहने का अल्लाह ताला ने ज़िम्मा अपने ऊपर लिया है, और उसकी मिसालें आज तक हमारे सामने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनको सब कुछ है, हम तो उनके मोहताज हैं भाई। हमें अल्लाह ताला ने अगर हिदायत दी या कुछ और उसको पढ़ने समझने का, क्या वो भी उसकी मेहरबानी है। जिस हद तक देगा वो भी उसकी मेहरबानी है, नहीं देगा वो भी उसका अमल है भाई। तो ये है कि अपनी अपनी समझ बूझ है। हमें एज ए तालिब इल्म, स्टूडेंट होने के नाते हमें। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं, बाबे मान सर, एक सेकंड बाबे मान सर, ये यूजर भाई की बातें आप सुन रहे हैं ना? सुन रहा, बाबे मान सर, ये इस तरह के लोगों का इंसान क्या करे? अभी इनके साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। मैंने इनसे अगर सवाल करूं, अभी इनसे ये सवाल मैं करता हूँ जी, अभी मैं इनसे ये सवाल कर रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ले रहा, मैं कुरान का इल्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही ले रहा हूँ। तो अब मैं ये हक रखता हूँ ना कि वो किताब बताएं कि कौन सी किताब है जिसमें आपके पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कुरान का इल्म आपके पास महफूज है। बिस्मिल्लाह, वो बता दे कौन सी है। भाई हम तो उलमाए से ही सीख रहे हैं, जो उलमाए कराम ने, जैसे मैं अपनी बात बता देता हूँ कि देखिए, मैं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तर्जुमा पढ़ता हूँ तफसीरुल कुरान के नाम से। फिर डॉक्टर इसरार अहमद साहब को मैं सुनता हूँ, बयानुल कुरान उनका कलाम है। कुछ मैंने समझ लिया है, कुछ पढ़ लिया है, कुछ मेहनत जारी है, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अपनी तरफ से रिपोर्ट नहीं करते, और वो जिस हद तक उनका नॉलेज है वो पीछे से सारी बातें रिपोर्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ माशाल्लाह बहुत से उलमाए कराम ने बहुत सारा काम किया है, कितनी सारा नॉलेज दुनिया में आ चुका है। उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हैं। मैं अल्लाह ताला जौहरी साहब को भी सुनता हूँ, माशाल्लाह बड़े अच्छे कातिब और बड़े अच्छे ख़तीब रहे हैं माशाल्लाह। तो नॉलेज है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं जी। मैंने उलमा की बात नहीं की, मैंने कहा है आपके पास इस वक्त कुरान की आयत की तफसीर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, वो कौन सी आयत, कितनी आयत हैं आपके पास, और किस किताब में वो तफसीर मौजूद है? मुझे प्लीज उसका नाम बता दें। नहीं, मैंने आपने शायद सुना नहीं, मैंने तफसीरुल कुरान का नाम लिया। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने वो उसकी तफसीर लिखी है कुरान की, तफहीमुल कुरान के नाम से। मैंने वो ज़्यादा पढ़ी है। तो और उन्होंने अपने नॉलेज जहाँ जहाँ से लिए हैं वो उनका वाकिफ़ है। आप मुझे सारी बात ऑब्वियसली याद नहीं है कि उन्होंने कहाँ से क्या क्या नॉलेज लिया, लेकिन आप जो ये कनेक्ट कर रहे हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई कोई किताब है, तो मेरे नॉलेज में ऐसी नहीं है। अगर आपके नॉलेज में तो आप बताएं। डॉक्टर इसरार साहब हों या मौदूदी साहब हों, उनका अपना फैम, उनकी अपनी बात, वो उन पर लागू है ना, वो मुझ पर लागू नहीं। मैंने आपको शुरू में कानून बताया कि कुरान, जो कुरान को लेके आने वाला जो कुरान का वारिस है, जब तक किसी आयत की वो तफसीर बयान नहीं करते कि इसका मानी क्या है, कोई भी दूसरा बयान करे तो वो मेरे लिए उसका कोई मानी, कोई अहमियत नहीं रखता। चाहे वो मौदूदी साहब हों, चाहे वो डॉक्टर इसरार साहब हों, चाहे कोई और हो। इस ही तरह मैं कोई अपना फहम या अपने इल्म से कुरान के कोई मानी आपको देता हूं ना, तो आप पर वो हुज्जत नहीं, ना उसकी कोई अहमियत है। हम सब पर जो अहमियत रखता है, जो हुज्जत बनता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बनती है कि रसूलुल्लाह उस आयत के ज़ैल में कहते हैं कि इससे मुराद ये है। तो आपके लिए भी उसको मानना ज़रूरी है, मेरे लिए भी। तो मैंने आपसे सवाल ये किया था कि ये जो 114 कुरान का सूरा है, और इन 114 सूरों की जो 6236 आयत हैं, इन तमाम आयत की जो तफसीर है, आपके पास मौदूदी साहब ने रसूल अल्लाह से कितनी आयत की तफसीर लेके तफहीमुल कुरान के अंदर दर्ज की है?
बाबे मान सर, मैं सर एक बात करना चाहती हूँ, उनको नहीं पता होगा बाबे मान सर यूजर भाई को, मतलब वो बस एक बिलीवर हैं, उनकी मुझे जितनी मैंने आज तक इनसे बात की, बस वो बिलीवर हैं, वो इतनी डिटेल में भी नहीं गए वे। इंशाल्लाह मतलब सुन रहे हैं लोगों को तो होपफुली, अगर मैं गलत हूँ यूजर भाई तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी थी। अच्छा मौदूदी, आपके पास यूजर भाई कंप्यूटर खुला हुआ है? मैं अभी तो के सामने नहीं हूँ, अच्छा, आप मौदूदी की आपकी आवाज नहीं आ रही यूजर भाई, आपकी आवाज बहुत कम है। अब आवाज आ रही है मेरी? मतलब वो क्लियर आ तो रही है लेकिन क्लियर नहीं है, और बहुत दबी हुई सी आ रही है। एक सेकंड ठहरिए। ये बारी लिखी हुई बेटर है थोड़ी सी जी, बेटर है। अच्छा यूजर भाई जरा मेरी एक मदद कीजिएगा, मौदूदी साहब की ट्रांसलेशन है सूरह ज़ुमर की 42 आयत नंबर 42। एक मिनट। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन मौदूदी साहब करते हैं, वो अल्लाह ही है, मैं मौदूदी साहब की ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ, वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज करता है, और जो अभी नहीं मरा उसकी रूह नींद में कब्ज कर लेता है। ठीक है, जबकि इस आयत में रूह का लफ्ज ही नहीं है, इस आयत में लफ्ज है नफ्स का लफ्ज है, अल्लाह यतवफ़्फ़ल नफ्सो हीना मूतिहा, यहाँ पे नफ्स का लफ्ज है। ट्रांसलेशन भी गलत की हुई, तफसीर तो छोड़ दें। और ये मौदूदी साहब हैं। तो ये मुझे बताइए ना कि आप क्या आप लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या कोई किताब है ऐसी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर बयान की हो कुरान पाक की? उस किताब का क्या नाम है? जी, आप उस दिन दूसरी लाइव पे भी पूछ रहे थे, उसका जवाब हम दे देते हैं। देखिए, हमने पहले आपको बताया, वो आप वहाँ पे बयान भी हो रहा था, आई डोंट नो आपने जो है वो शायद वो फोकस नहीं हो पाया या जो भी, वो उन्होंने आपको कहा कि उन तफासिर मौजूद थी, लेकिन चूंकि उसके बाद हालात रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के बाद ऐसे रहे कि हमारे आइमा को कत्ल किया गया, हर चीज़ जला दी गई, जो बच गया है वो मौजूद है, सारी की सारी चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है, जो बच गया है वो मौजूद है, सारी की सारी चीज़ मौजूद नहीं है। उसका और कहाँ पे मौजूद है वो बाबे मान सर आपको बताएंगे। जी बाबे मान सर, बिस्मिल्लाह। पहले तो इनसे यूजर भाई से पूछते हैं कि इस वक्त आपके यहाँ जो सबसे मोतबर किताबें हैं वो कौन कौन सी है? अरे भाई, हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ, आपके यहाँ, इनके यहाँ, इनको हटाए, आप ये बताइए बाबे मान सर, ये यूजर भाई चाहते हैं कि बाबे मान सर यूजर भाई चाहते हैं कि इनके बताएंगे भाई कि कुरान पाक का भी ये तफसीर है, जिस हद तक नॉलेज मौजूद है। वो मेरे ख्याल एक भाई ने बताया भी था, मैंने लिखा था अभी मेरे सामने। बाबे मान सर यूजर भाई कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को जो है टैग ना किया जाए, तुम्हारा मेरा ना किया जाए, बस एक दूसरे से अच्छे अंदाज में बात की जाए। तो वो चाहते हैं कि बस दूसरे को इस तरह मतलब वो मत करो कि तुम ऐसे हो मैं ऐसा हूँ, मतलब वो कहते हैं कि इस तरह की बातें मतलब मुझे इनको अच्छी नहीं लगती। तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता रही हूँ। जी भगवान सर, सीधे से ये बात ठीक है उनकी, मैं इस पर जरूर अमल करूंगा, लेकिन ये इंसान की एक फितरत है। मैं अभी इनसे सवाल करूंगा ना कि आप नमाज हाथ खोल के पढ़ते हैं या बांध के, तो ये फौरन कहेंगे कि मैं हाथ बांध के नमाज पढ़ता हूँ। ऐसा ही है यूजर भाई? जी जी। तो अब देखा, अब जब ये हाथ खोल के पढ़े तो ये किसी फिरके को फॉलो करके पढ़ रहे हैं ना, किसी किताब को फॉलो करके पढ़ रहे हैं ना सईदा सिस्टर, तो मैं यहाँ हक रखता हूँ ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यानी जब बांध की और हाथ खोलने की बात आती है तो ये फिरके की बात नहीं करते, फौरन कह देते मैं बांध के पढ़ता हूँ। और जब मैं कहता हूँ किस किताब को फॉलो कर रहे हैं तो आप सवाल कहते हैं कि नहीं, ये आप इस तरह की बात मत करें। आप हाथ खोल के पढ़ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं हाथ खोल के पढ़ता हूँ। फिर आप भी एक फिरके को फॉलो कर रहे हैं? जज़ाकल्लाह। क्लेम नहीं कर रहे यूजर भाई, वो तो ये क्लेम नहीं कर रहे। हाँ, तो मसला ये है, तो पूछने की क्या जरूरत है? मैंने ये कहा कि आपके पास कोई सोर्स है ना, मतलब वो सर्टिफिकेट दे रहा है ना, फॉरेन टाइटल पकड़ाना, सर्टिफिकेट नहीं यूजर भाई देखिए, हर इंसान जो है इस दुनिया में, हर इंसान वो आपने किसी न किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं ना, तो यकीनन आपका मौदूदी साहब हो या डॉक्टर इसरार हो, बल्कि अहले सुन्नत के जितने पैदा होके मर चुके हैं वो भी और जो मौजूद हैं वो भी, वो सही बुखारी और मुस्लिम को ही फॉलो कर रहे हैं ना। असल माखज तो ये दोनों किताबें हैं ना, सही मुस्लिम सही बुखारी, या सियासता की बात कर लें। तो
अब सवाल ये उठेगा ना, क्या सही मुस्लिम हो या सही बुखारी हो, जो असल मेन माखज है, जो मंबा है अहले सुन्नत के पास, क्या इन किताबों के अंदर कुरान की तफसीर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, कितनी आयात की तफसीर इन किताबों के अंदर मौजूद है? ये तो सबसे पहला सवाल उठेगा ना। सईदा सिस्टर, क्या ये सवाल गलत है? जी बाबा मान सर, मैं तो एग्री करती हूँ। वो आप जो है ना यूजर भाई से कर लें बात। मतलब यूं समझिए ना। और सर इसमें जो आपने भी नुक्ता रखा ना यूजर भाई ने, सर एक पॉइंट में समझना चाह रहा हूँ, उस मौजू की तरफ आते हैं। चंद एक जो मैंने मालूमात ली अब तक, वो ये कि भी कि एक तो मेरे ख्याल आप कलमा ये पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ऐसे ही है? जी। अच्छा ठीक है। तो फिर खैर मौजूद तो काफ़ी और बातें भी हैं। अब चले एक पहल काफ़ी मैं दिलचस्पी रखता हूँ बात में, कि एक बिलीफ ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िंदा भी हैं, और वो उनकी ज़िंदा होने की बेस ये है कि जी के जो कत्ल हुए अल्लाह ताला की राह में, उनको कत्ल मुद्दा ना कहो, अल्लाह ताला के यहाँ ज़िंदा हैं, रिज़्क़ पा रहे हैं वगैरह वगैरह। और उसमें ये भी हुआ कि भी एक जगह से मैंने ये भी सुना कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी को भी जहर दिया गया था, वो नेचुरल डेथ उनकी नहीं हुई थी, मैंने एक जगह से सुना। फिर ये भी सवाल उठा कि भाई क्या हज़रत उमर को भी तो कत्ल किया गया था, हज़रत उस्मान को भी कत्ल किया गया था, फिर इस कानून के तहत वो भी ज़िंदा हैं? तो हाँ जी, वो भी ज़िंदा हैं। और फिर एक जगह मैंने सुना कि जी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त हम जो बातें कर रहे हैं वो सुन भी रहे हैं, तो ये भी तो फिर बाकी भी सुन रहे होंगे। फिर अगली मैंने एक जगह सुना, जो कि मैं पूरी बात सुन नहीं पाया, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि देखिए क्या हज़रत अली डायरेक्टली हमारी मदद भी करते हैं? और वो मेरे ख्याल क्या थे, अपने ब्रदर आते हैं आपकी ब्रॉड पे, क्या उनका वो बड़ा खूबसूरत सा उनका एक टाइटल है, नॉवल भाई, नॉवल भाई। हाँ नॉवल साहब, हाँ वो बड़ा अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह वो नॉवल साहब। तो उन्होंने बताया कि भाई कि वो उनसे हम मदद इसलिए मांगी जाती है कि वो मदद करते भी हैं, वो गवाह हैं, और शहीद का लफ्ज़ हमने डिस्कस किया कि वो गवाह हैं। तो वो मैं पूछना चाहता था फिर कि क्या हो कि वो एक्चुअली यानी मदद भी कर रहे हैं वो फिज़िकली, या हिदायत के ज़रिए, या किस तरह, या कम्युनिकेशन क्या क्या आलम, वो मेरे ख्याल मैंने बहन से पूछा था, तो उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा इस मौजू पे मुझे गाइड करें कि इन बातों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मैं सही सुन के आया हूँ, बता सही रहा हूँ, या क्या क्या मामला है? अच्छा, कुरान की एक आयत पेश करता हूँ आपके सामने, और मैं सिर्फ नंबर दूंगा, तलावत आपने करनी है। अच्छा, जब तक बाबा मान सर उसको निकालते हैं, यूजर भाई आपको पता है आपने जितनी बातें कही है ना जहर देने वाला रसूलुल्लाह को, तो ये सारी अहले सुन्नत की हदीस में है, ये सारी बातें। नहीं, ये तो मैं एक और बार भी सुन के आया हूँ, जो कि पहले तशहीह मेरे ख्याल अपने आप को कहते हैं, और वो जी जी अहले तशरीह कहते होंगे, लेकिन ये जी जी कहते होंगे ज़रूर, लेकिन ये अहादीस, ये जो बातें हैं, ये अहले सुन्नत की किताबों में है। कोई बात नहीं है, सही से छोड़ दे, मैं अभी सिर्फ हाथ से हैं कि अहले सुन्नत ये आयत सुने, ये आयत पढ़नी है आपने। में ऐसा हुआ है, या कि वो कह रहे हैं कि जी अहले तशहीह के यहाँ ये नॉलेज रखा जाता है, किस हवाले से है? यूजर भाई एक सिर्फ आयत पढ़ दें, खैर है, फिर इस आहिस्ता वापस आते हैं। एक बात मैं पूरी कर लूँ बहन के साथ, तो फिर हम इस मौजू को डिस्कस करते हैं। जी सईदा बहन, आप क्या कह रही थी कि अहले सुन्नत की जो हदीस हैं, क्या वो ये कोट कर रही हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया था, या कि वो ये कह रहे, उनको अपना सुनाएं जरा इस बात को। जी आप गूगल का सॉरी एआई पे डाल दें, आपको आप मिल जाएगा। जी आपका नॉलेज होगा ना, आपका जो नॉलेज है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहे हैं, आते हैं इसकी तरफ आते हैं, ये जो बाबे मान सर जिस आपने न्यूज़ स्टार्ट किया इसको ले लेते हैं, फिर वो आ जाते हैं। मुझे एग्जैक्ट हदीस याद नहीं है, लेकिन ये अहले सुन्नत की किताब में है। मैं आपको निकाल के दे देती हूँ जब तक आप मैं आयत दूंगा। बात पूरी तो कर ले कि है क्या ये बात, देते हैं ना, पूरी बात करते हैं, इंशाल्लाह करते हैं। तो भाई बुखारी की हदीस है यार, बुखारी की हदीस मौजूद है, वो मैं दूंगा। खैर है, आप बाब इमाम सैयद से बात करें, वो बुखारी की हदीस मेरे पास मौजूद है, मैं दूंगा। अच्छा ठीक। सूरा आले इमरान की 96 नंबर आयत को तलावत करें। यूजर भाई अगर आपके सामने ना हो तो बता दें, फिर इनका बंदोबस्त करते हैं इसका। जी आप तलावत करें ब्रदर, मैं सुन रहा हूँ।
شأن شاب زويا میں تلاوت کرتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکات مبارکا وحدا للعالمین. سید یہ وہی آیت ہے؟ یہ اول البیت والی بالکل یہی ہے. جی جی. بے شک پروردگار سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسان کے لیے بنایا تعمیر کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں واقع کیا گیا ہے، یعنی خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں. اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام کے تمام جہان والوں کے لیے پروردگار نے مرکز ہدایت بنایا گیا وہاں، یعنی خانہ کعبہ ہدایت بنایا تمام انسانوں کے لیے، تمام عالمین. جی بس. اب یوزر بھائی آپ اس آیت کے ترجمہ جو انہوں نے بیان کی ہے اس کو مانتے ہیں یہ صحیح ہے؟ جی 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 میں پڑھ رہا ہوں، وہی پڑھ رہا ہوں، بالکل سیکھا ہے انہوں نے. یہ آیت کا ترجمہ صحیح ہے؟ یہ انہوں نے صحیح پڑھا ہے، میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں. اوکے. اب میرا سوال یہ ہے، یہ قرآن کی جو آیت کہہ رہی ہے کہ زمین پر جو اللہ کا پہلا گھر ہے وہ کعبہ ہے اور یہ لوگوں کو ہدایت بھی کرتا ہے، کیا پتھر ہدایت کرتے ہیں؟ بسم اللہ. نہیں، میرے خیال اس کے الفاظ جو ترجمے کے جو ہیں وہ یہ ہے کہ اور تمام جہان والوں کے لیے مرکزی ہدایت بنایا گیا تھا. کیسے یہ مرکزی ہدایت کیسے ہے؟ بسم اللہ. بتا دیں کیسے. بسم اللہ. بھائی سوال میں نے آپ سے سوال کیا، آپ مجھے سوال کر رہے ہیں. جی آپ سے سوال کر رہا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. جی بسم اللہ. تو یوزر بھائی آپ کا کیا موقف ہے؟ یعنی آیت میں تو واضح طور پر فرما رہے ہیں نا کہ وہ جو ترجمہ لے گئے مترجمین نے اس میں واضح طور پر جو خدا کا پہلا گھر تھا عبادت گاہ، یعنی مسلمانوں تمام لوگوں کے لیے پروردگار نے انہیں یعنی ایک ہدایت بنایا، جیسا آپ نے فرمایا ہدایت کا مرکز بنایا. میں نے مان لیا. جی ترجمہ تو آپ نے سید کا یہ سوال ہے آپ سے. سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. یہ ترجمہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ لیکن مرکز کا لفظ عربی میں نہیں ہے، تو آپ سے وہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ خانہ کعبہ جو ہے نا اس میں پتھر ہے، پتھروں کا تعمیر کیا گیا خانہ کعبہ ہے نا. تو سید کا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہی ہے، ہم ہدایت ان پتھروں سے لے سکتے ہیں؟ سید کا سوال یہ ہے آپ سے. نہیں، ترجمہ تو جو میں پڑھ رہا ہوں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ تمام جہان والوں کے لیے مرکزی ہدایت بنایا گیا. میں نے کوئی انکار بار بار مجھ پہ ہی پلٹا رہے، میں نے تو سیکھنے کے لیے سوال آپ سے کیے ہیں. لکھ رہا ہوں. بسم اللہ. اچھا چلے میں ذرا اس آئس کو توڑتی ہوں. دیکھیں وہ جو پچھلی والی وہ بخاری کی بات کی وہ مجھے مل گئی ہے. وہ بیسیکلی بخاری کی حدیث نمبر ہے 4428، ٹھیک ہے، جس میں کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او عائشہ، I still feel the pain caused by the food I ate at Khyber, and at this time I feel as if my aorta is being cut from that poison. جو رسول اللہ خود کہہ رہے کہ میں نے جو کھانا خیبر کے وقت کھایا تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ زہر کا اثر میرے جسم میں اب ہو رہا ہے. تو یہ رسول اللہ کے اپنے الفاظ ہیں، تو وہ جو زہر کی بات ہے وہ رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں. میں ایک آیت بھی دوں گا ابھی اس کے اوپر. ایک تو ابھی وہ صرف مرکز ہدایت سیکھنا ہے بھائی سے، تاکہ یہ مجھے سکھا دیں کہ وہ مرکز ہدایت کیسے ہے. پتھر ہو کے مرکز ہدایت بن گیا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام اگر کسی کو ہدایت کر دیں اور وہ جو ہیں اللہ اکبر ان کی ہدایت پر جو ہے لوگوں کو شک اور پتھر کی ہدایت پر یقین ہو، یہ کیسا قانون ہے؟ جی بردر بسم اللہ، سن رہا ہوں میں. نہیں، میں نے تو آپ سے وہ صرف سوال کیا تھا کہ مجھے جواب مل جائے تاکہ میں آگے بات کو لے کے چلے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا یہ بتائیں یوزر بھائی کہ اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے یا اس میں نقص ہے؟ اتنے سوال پتہ نہیں، آپ اتنے سوال جواب کٹے کر کے لے آتے ہیں اللہ کے بندے. میں نے اتنے سوال کیے تو اس کا ایک کبھی جواب نہیں. آؤ سوال کے آگے سے ابھی یہ یوزر بھائی باب مان سر ہمارے ٹیچر ہیں، ہم ان کو اس طرح یوزر بھائی باب مان سر میرے ٹیچر ہیں، میں ان کو اس طرح ایڈریس نہیں کرنا چاہتی جیسے کہ آپ کر رہے ہیں. تو پلیز آپ سے درخواست ہے کہ کائنڈلی تھوڑا سا. وہ آپ کے ٹیچر ہے نا، میں بھی کئیوں کا ٹیچر ہوں.
तो ये टीचर के दरमियान बिरादराना गुफ्तगू नहीं नहीं, होती कोई है। नहीं है, उनको करने दें सईदा सिस्टर। वो आपकी उनके लिए एहतराम की नहीं, ये बताएं, मैं आपसे सिंपल सवाल अच्छा किया खैर है। है। काम कर रहा हूं उनका। जी यूजर भाई, मैंने सवाल किया है कि ये बताएं कि अल्लाह का इल्म कामल है या नाकस है? अरे भाई, ओ मेरे भाई, मैंने जी जो जी, आपको पहले अर्ज की है सवालात, क्या आपने वो सुने हैं? मैंने आपने सुन लिया, उसी का जवाब देने जा रहा हूँ ना, के बारे इसलिए में सवाल कोई कर रहा हूँ। जवाब दे अल्लाह दो। का इल्म कामल है या नाकस है? अभी सईदा सिस्टर ने एक हदीस बुखारी से पढ़ी है, मैं इसकी सबूत कुरान से दे रहा हूँ। मैंने सवाल किया कि अल्लाह का इल्म कामल है या नाकस है? बोले बिस्मिल्लाह। आप जवाब दे बिस्मिल्लाह, जो आपका नॉलेज है ना, आप जवाब दें। जो चल सर जी बिल्कुल कामिल है सर जी। जज़ाकल्लाह काज़मी सैयद। अल्लाह का इल्म कामल है, तो अल्लाह को पता है ना कि किसने मरना है और किसने कत्ल होना है। काज़मी बिल्कुल सैयद, सर, बिल्कुल सर जी। जज़ाकल्लाह। अब कुरान की आयत है कि अगर रसूल कत्ल हो जाए या मौत आ जाए, और अगर कोई रसूल अल्लाह ने कत्ल नहीं होना था और अल्लाह को पता था कि रसूल को सिर्फ वफात आएगी, मौत आएगी, तो अल्लाह ने दो बातें क्यों की अगर कत्ल होना ही नहीं था? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी। दिल वाले को तो पता है ना कि इसने कत्ल नहीं होना, सिर्फ इसको वफात आनी है, मौत आनी है, तो अल्लाह ने दो बातें क्यों की? बातें कौन सी कह रहे हैं आप? कत्ल हो जाए या मौत आ जाए। आपको कुरान पाक का हवाला दे रहे हैं किसी जी जी जी, कुरान की आयत ही दे रहा है। जी जी आयत है, कुरान की आयत है बिल्कुल। सूरत नंबर और आयत नंबर क्या ब्रदर? मैं पढ़ूंगा आयत, तो पढ़े जी। रेफरेंस मुझे नहीं पता, मैं लेकिन आयत आप पढ़े, मैं देता हूँ वमा रेफरेंस। मुहम्मदुन, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़इन माता औ कुतिला, इसको मौत आ जाए या कत्ल हो जाए, अनक़लबतुम अला अकाबिकुम, अगर ये मतलब मर जाए या इन्हें कत्ल कर दिया जाए तो तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे, यानी ये उल्टे पाँव फिर जाएंगे से बाब इमाम सैयद वजाहत हमें देंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उस लफ्ज़ से कि यानी तुम फिर दोबारा अपने आबा व अजदाद की उसकी तरफ पलट जाएंगे, यानी दीन से खारिज हो जाएंगे, या इसका मतलब बाकी बाब इमाम सैयद वजाहत देंगे। लेकिन ये मौत और कत्ल वाला जो है अफ़ा इन माता औ कुतिला, ये सूरह आल इमरान की 144 है, 144 नंबर सूरह आल इमरान की आयत। क्या इससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि ये तो हम ये क्वेश्चन जी, किया जा हम रहा है। ये आपको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे अल्लाह पहले का भी इल्म कामल है, अगर फिर रसूल अल्लाह ने मुलाकात आ कत्ल जाए होना ही या नहीं कत्ल था। कर दिए जाए तो क्या तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे? ये तो जी लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है ना, कि लोगों को से क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई अगर ये ऐसा हुआ, कुछ भी हुआ, दोनों तो सूरतों भाई में जिस अल्लाह तरह भी की हुआ, तो तो इल्म क्या में है तुम ना कि आ अगर जाओगे? रसूल अल्लाह ने कत्ल होना ही नहीं, मौत आनी, तो अल्लाह डायरेक्ट कह देता ना कि ए लोगो, अगर मोहम्मद को मौत आ जाए तो क्या तुम उल्टे पांव फिर वापस चले जाओगे? तो कत्ल की तो बात करने की जरूरत ही नहीं थी अल्लाह को। तो अल्लाह ने ये दो बातें की हैं, मौत आ जाए या कत्ल हो जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह का इल्म तो कामल है, अल्लाह को तो पता है कि अगर कत्ल होना ही नहीं, सिर्फ रसूल अल्लाह को मौत आनी है, तो कत्ल का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। भाई उसकी मर्जी, वो अल्लाह भाई ताला है, उसकी मर्जी। वो इस तरह गए उस तरह गए जैसे मर्जी गए। हाँ जी, हाँ जी, हम आप उसकी कौन है मर्जी। उसको सिखाने वाले के जी उसको ये यूजर कहना भाई चाहिए थोड़ा उसको गौर आपको करना, वही गौर कहना फिक्र करना बाबा इमाम सर की लफ्ज की। आप थोड़ा गौर करना, गौर नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर से गुजर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। क्या बताना चाह रहे हैं ब्रदर? फिर जरा एक्सप्लेन करना जरा, बिस्मिल्लाह। भाई एक्सप्लेन तो कर रहा हूं कि अल्लाह का इल्म कामल है, उस कामल इल्म के अंदर उस ज़ात को इल्म है जिसने कत्ल होना है, उसके कत्ल का भी इल्म है अल्लाह को, जिसने बगैर कत्ल के दुनिया से मौत आनी है, मरना है, उसका भी इल्म है। तो रसूल अल्लाह के मुतल्लिक तो अल्लाह को इल्म था ना कि अगर कत्ल होना ही नहीं, उन्होंने कत्ल की बात अल्लाह को करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ कह देता कि जब मोहम्मद को मौत आ जाए, कत्ल की बात ही नहीं करनी चाहिए। तो कत्ल की बात करके अल्लाह ने साबित कर दिया कि ये कत्ल होंगे। नहीं तो जब ये मौत वाली बात की है, उससे साबित नहीं हुआ कि भाई ये मौत, इनकी मौत हो जाएगी? और भाई एक है मौत, एक है कत्ल के जरिए मौत, एक है मौत बगैर कत्ल की, और एक है कत्ल के जरिए मौत। यहां कत्ल के जरिए मौत का जिक्र है। भाई तो जिक्र ही है ना, जिक्र तो मौत का भी तो जिक्र है ना, नेचुरल डेथ का भी तो जिक्र है।
लेकिन ये कत्ल के जरिए है ना, नेचुरल डेथ की बात होती तो अल्लाह कत्ल का जिक्र ही ना करता। पहले नेचुरल मौत का भी तो जिक्र है ना, वो भी तो पढ़ेगा। उसके आगे वो यही तो फरमाया जा रहा है कि मर जाए या आप वाकई उस्ताद हैं, कोई शक नहीं है। तो वो बात जो देखे ना, फिर सूरह ज़बर में पढ़े कि अल्लाह ताला जैसे फरमा रहे इन्ना का नहीं यूजर भाई आगे नहीं जाओ ना, यूजर भाई इस आयत पे बात करेंगे, आगे अभी नहीं जाएंगे। तुम्हें भी मरना है और इन लोगों को भी मरना है। अब यहाँ तो कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो। और बहरहाल देखें ये वो फिर अब मैं कहूँगा और अर्ज़ करूँगा आपसे मोहतरम कि मैंने जो सवाल किए हैं उसके बारे में थोड़ी रोशनी हो जाएगी, इनायत हो जाए। बिस्मिल्लाह। ये 19 सवालों के भाई जवाब ही यहाँ हो रहे हैं। जी श्याम बिस्मिल्लाह। यूजर भाई यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में ये है, वही आपको उस हदीस पर आयत दे रहे हैं कि उस हदीस में ठीक है, बिल्कुल वो ऑथेंटिक हदीस है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकते, वो कुरान के ऐन नस है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यानी अब मौत का लफ्ज़ मेरे ज़बान पे आता नहीं है, मौला माफ़ करे, अगर अपनी मौत पे इंतकाल करना होता तो खुदावंद कुदूस कभी भी फिर अपनी इल्म के बुनियाद पर वहाँ पर औकुतिलन कलब तुम अला आकाबिकुम वमन यनकलिब अला अक़िबातिही, ऐसे कोई लफ्ज़ है, तो फिर कभी भी परवरदिगार उसके बारे में कत्ल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता कुरान में, बल्कि कुरान में जब कत्ल का लफ्ज़ आया तो इससे वाज़ेह हो गया कि खुदा ने ये वाज़ेह कर दिया और इस चीज़ को तस्लीम करो कि रसूलुल्लाह कत्ल हो सकते हैं। दैट मीन्स जो जहर वाली हदीस है वो ठीक है, जहर दिलवाया गया है उसको। तो अल्लाह वाला मेरा इसमें नॉलेज नहीं है, इसलिए अगर आपका ये बिलीफ है वही 100%। नहीं, हदीस से हमने इस्तिदलाल लिया है ना, हम तो हदीस को देखते हैं, हमारे पास तो वो आयत है ना, तुम औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। भाई मैं तो इसमें जो मुझे जो समझ में आ रही है वो इस लिहाज से है कि देखिए उसमें दोनों सूरतों का जिक्र किया गया है और दोनों सूरतों का जिक्र करके जो पिवट पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो है हम इंसानों के लिए कि हम जो बाद में आएंगे इंसान उनके लिए हम उल्टे पाँव फिर जाएंगे। हम उल्टे पाँव फिरने का क्या मतलब? वो बात की बात है ना। नहीं वो तो सेकेंडरी प्राइमरी पर आ जाओ ना कि अल्लाह ताला की जो हिदायत है, जो कुरान पाक है, उसकी हिदायत को छोड़कर हम दूसरे मामलात में इधर उधर उलझ जाएंगे या इधर उधर चले जाएंगे। वो तो एक्चुअली हमें वो यहाँ पर वो बात नहीं है जो आप फरमा रहे हैं यूजर भाई मेरी जान, जो बात आप कर रहे हैं यहाँ पर नहीं है ना। हिदायत यहाँ पर कहाँ से आ गया? यहाँ पर न हिदायत की बात है, ना जो बात आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। अगर आप अपनी तरफ से आपका अंडरस्टैंडिंग है वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात जो आप कर रहे हैं ना हदीस में है ना कुरान की आयत है। यहाँ पर वाज़ेह दो टोक अल्फाज में वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये ज़िंदगी में मोहम्मद है ही नहीं, ये जब से भी है जो भी है ये रसूल है। कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल अफ़इन मात औ क़ुतिल अनक़लब्तुम, ये मर जाएगा या कत्ल हो जाएगा। ये दो टोक लफ्ज़ है, मतलब दो अल्लाह ने मौत का भी लफ्ज़ किया, कत्ल का भी किया है। अगर ये कत्ल ना किया होता तो फिर अल्लाह कभी भी ना फरमाते, फिर सिर्फ परवरदिगार फरमाते अफ़इन मात अनक़लब्तुम या अला आक़ाबिकुम, ऐसे अल्फाज होते। ये कत्ल वाली अल्फाज हो भी ना जाते कुरान में। फिर चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने जो सवाल अर्ज किए हैं उनका फॉरवर्ड ना चलें, बैक पर चलते हैं यूजर भाई, बैक पर चलते हैं, फॉरवर्ड फायदा नहीं है। जहाँ से बात शुरू हुई कि ये किताब जो है, ये किताब का वारिस जब तक किताब को ना समझाए तो ये इल्म जो है इंसान को नहीं मिल सकता। और अगर वो खुदा कानून ना बनाए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को समझने के कानून ना बनाए तो फिर हम एक दूसरे को गलत कहने का हक नहीं रखते। जब रसूलुल्लाह ने कानून ही नहीं बनाए या अल्लाह ने नहीं बनाए तो फिर हम हक नहीं रखते किसी की अंडरस्टैंडिंग को गलत कहने का। हम उस ही वक्त आपको गलत कहने का या आप मुझे गलत कहने का हक रखते हैं जब कोई बना हुआ कानून मौजूद होगा, तो हम दोनों उसके झैल में चलेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर कानून है ही नहीं, ना आप मुझे गलत कहने का हक रखते हैं, ना मैं आपको गलत कहने का हक रखता हूं। इसलिए हम कहते हैं कि जब इंसानों की अक्लें इस बात को तस्लीम करती हैं कि अगर मेरी बात को कोई नहीं मानता, वो कहते कि मैं हक नहीं रखता कुरान का मानी देने का, तो फिर ये मैं भी हक रखता हूं कि आपको भी हक नहीं कि आप मुझे कोई मानी दें। हम फिर कोई ऐसा खुदा की तरफ से कानून होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर हम कुरान को समझ सकें।
अगर हम सब ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही समझना है तो फिर मुसलमानों के इतने फिरके होने की जरूरत ही नहीं थी। ये इतने ज्यादा फिरके होना इस बात की दलील है कि कोई कानून है जिसकी बुनियाद पर ये अलग अलग फिरके बने हैं। अगर कानून है ही नहीं तो फिर फिरका बनना ही नहीं चाहिए। सारे के सारे अपना अपना सही मतलब निकाल के लेके आ रहे हैं। अब मुसलमानों को भी छोड़ दें, बहुत से गैर मुस्लिम हैं जो इस ही कुरान से मतलब निकाल के वो आपके सामने दलील की शक्ल में पेश करते हैं, तो फिर उनकी बात को भी मान ले। तो पता चला ऐसा नहीं है। कुरान और कुरान के साथ कुरान को लाने वाला, कुरान का वारिस, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कुरान की वही राइज होगी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और इसके ज़ैल में मैंने आपके सामने छोटा सा एक सवाल रखा फजर की नमाज का, कि फजर की नमाज 2 रकत है, इसमें रकू है, सजूद है, क़याम है, तकबीरतुल इहराम है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो ये कुरान के अंदर मौजूद नहीं। ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है। तो पता चला कि अहकामात दीन जितने भी मुसलमानों के पास हैं वो सारे के सारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिए हैं। और इस ही ज़ैल में मैंने आयत पेश की थी कि जो मेरा रसूल दे वो ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। क्यों? कि ये कानून कुल्ली खुदा ने बना दिया है। कुरान का असल इल्म जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। वो जो कानून बनाएंगे हमने उन्हीं को फॉलो करना है। जिस चीज़ के करने का वो हुक्म देते हैं वो हमने करना है, और जिस चीज़ से वो रोकते हैं हमने रुकना है। आपने कहा नहीं, इसमें तो वो आपने उस आयत का पीछे वाला हिस्सा पढ़ के कहा कि ये इस ज़ैल में है। अब दूसरी आयत एक और सुन ले। इसमें अल्लाह ने सारा कंट्रोल कहा कि ए रसूल जो है ये तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा तसरफ रखता है। अब इंसान, पहले तो इंसान की अकल की बात थी ना, अब अकल भी जाती रही। आपने कहा अफला तदब्बरून अफला यतफक्करून। अब कुरान ने यह हुक्म कायम कर दिया कि अब रसूल तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक तसरफ रखता है। हमारे नफ्सों का वारिस ही अल्लाह ने रसूल को बना दिया। अब मुझे ये बताएं, अब ये जो तदब्बर और तफक्कर होगा ये अपना ज़ाती नहीं होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए उन कानून को फॉलो करने का नाम तदब्बर और तफक्कर है। अपनी तरफ से कुरान के मानी गढ़ने का नाम तदब्बर और तफक्कर नहीं। जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह सही। बहुत आला बाबे मान से क्या बात की है कि वाकई अपने मानी करने का नाम तदब्बर और तफक्कर नहीं है। क्या बात है। अगर यानी कि अगर हमने तफक्कर और तदब्बर किया तो ये हमारी क्यास की जुमरे में चला जाएगा। तो फिर तो मुसलमानों में फिरके नहीं होने चाहिए मेरे भाइयों। ये फिरके बना के इन्होंने खुद साबित कर दिया है कि कोई कानून है, उसको फॉलो ना करके ये फिरके बने हैं। अगर कानून नहीं तो फिर कोई फिरका है ही नहीं, सब सच्चे हैं, कोई भी झूठा नहीं। फिर सब के माने ठीक है, फिर किसी का माने भी गलत नहीं, फिर सब के माने ठीक है। फिर ये मासूम भैया आप जरा म्यूट लगाए, मेरे ख्याल में आपकी तरफ से। मैंने कर दिया, को नहीं आता तो तब ये होता है। हाँ जी जी सर जी जी जी। बहुत आला सर जी, बहुत आला। तफक्कुर तदब्बर का मतलब ये नहीं है कि हम जनाब उस कानून से अपने आप को अलग करें और इसके नतीजे वो जैसे मासूम भाई ने कहा तो बनते ही उससे आगे हम कियास ही कर रहे हैं सर जी। माशाल्लाह सही है। क्या खूबसूरत दलील है, क्या खूबसूरत दलील है सर जी। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। मैं अभी भी आपसे इंतज़ार में हूँ कि अगर आप कुछ रोशनी उधर भी डाल दें। मेरे सवालात थे। बिस्मिल्लाह जी। कोशिश तो यही कर रहे थे क्योंकि जब आप इतना बड़ा वो एक क्या बोलते हैं जंजाल बना देंगे तो वो उसमें ना जवाब देने वाले का जवाब लोगों तक पहुंचेगा, ना सवाल करने वाले तक वो बात पहुंचेगी। तो अगर एक ही चीज़ को लेके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दलाइल कुरान और अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। और अगर हम पहली बात को समझने के बजाय 10 नए सवाल खड़े कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा बाबे मान सर, ये यूजर भाई में कमाल ये भी है कि सारे कानून हमारे लिए हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। इन्होंने सवाल करना है, हमें सवाल नहीं करना।
यूजर भाई तो- ये चीटिंग है, ये तो फुल इंसाफ नहीं चीटिंग है। ये आप बात कह रही हैं, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ यहाँ से। मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि भाई यहाँ पे सवालात ही सवालात होते हैं। आप ये बताओ भाई, हर नहीं, हम कोई का कॉन्वर्सेशन में, हमारे सवाल कॉन्वर्सेशन वाले होते हैं। कॉन्वर्सेशन है कि मैं सवाल कर रहा हूँ, वो क्या कॉन्वर्सेशन है? वो भी तो कॉन्वर्सेशन है। नहीं, जब आप कहते हैं कि ये कहाँ लिखा है तो ये कॉन्वर्सेशन नहीं है, या आप रेफरेंस मांग रहे हैं। जब हम सवाल करते हैं कि क्या आपको क्या, मेरे पास जैसे एक कुरान पाक की आयत है या सूरत का नाम होता है, तो मैं उसको आपको अच्छा यूजर भाई आप ऑफेंड क्यों हो जाते हैं इतनी जल्दी? यूजर भाई ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? अब ये भी आप अपनी तरफ से राय कायम करिए। मैं इधर हंस मुझे रहा हूँ। इसे मुझे हाँ क्यों, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मेरा दिमाग है, आई कैन पहुंच रहा है। ऑब्जर्व। नहीं भाई, ऐसी अच्छा कोई आपका बात नहीं। क्वेश्चन है, पहला आपका अगर क्वेश्चन अली offend होता अलैहिस्सलाम तो के कोई ऊपर और क्या था? तरीकाकार होता है। चलो कोई बात नहीं है। यूजर भाई पहला क्वेश्चन अली अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या था आपका? ये जिंदा कैसे है? ठीक है ना, आप ये बातें आप भूल गई हैं, ये ज्यादती है ना। सईदा आपको याद सिस्टर, है? इसी का मैंने जवाब कुरान से दिया था कि काबा अगर पत्थर का घर होके मरकज हिदायत बन सकता है, लोग उससे हिदायत ले रहे हैं। हम्म जो बोल भी नहीं सकता, ना कुरान पढ़ सकता है, ना कुरान समझा सकता है, हम्म ना अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचा सकता है, पत्थर का घर होते हुए लोगों के लिए मरकज हिदायत बना हुआ है। और अली अलैहिस्सलाम तो बोलते हुए नातक हैं, वो हादी क्यों नहीं? क्या बात है बाबा मंसूर, क्या बात है। यूजर भाई जवाब मिला या एक्सप्लेन करूं? नहीं, वो बात तो देखें, जहाँ तक आप रज़ी अल्लाह ताला ने जो भी उनका इल्म है, उनको तो कोई भाई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली उनका जो भी ये हिदायत आपकी की मछलियों को मैं जहर डालूंगी, आपकी मछलियों को मैं जहर डालूंगी। वो सारा कुछ उन्होंने जो फरमाया वो सिर मत्थे पे। तो लेकिन ये ज़रूर है कि भाई अपना मेरे जो सवाल थे जो मैं समझ रहा हूँ सिर्फ कि भाई कि क्या क्या बिलीफ्स हैं, उस बिलीफ का मैं ये हाँ या ना में समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्या यही यकीन रखा जा रहा है कि भाई क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु कत्ल किए गए हैं तो वो ज़िंदा हैं, और हज़रत उस्मान भी कत्ल किए गए हैं, हज़रत उमर भी कत्ल किए गए हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो बिलीफ है कि जी कत्ल किए गए हैं, वो सब ज़िंदा है। अल्लाह ताला के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं, हम उन्हें समझ नहीं सकते। ये भी हम कुरान पाक से समझ रहे हैं। जालूत ने तालूत को कत्ल किया, क्या दोनों जिंदा हैं? सवाल पे आगे से सवाल, भाई जो मैं सवाल कर रहा हूँ उनके तो जवाब दे दे मेरे भाई भाई। जवाब उसमें देने की वो है कोशिश ना, कर रहे हैं ना आपको। जनाब अली, उसमें आगे लॉजिक है ना। अब उसने कत्ल कर दिया, काबिल ने कत्ल कर दिया, जवाब ने अगर उसको कत्ल कर दिया जाए वो भी शहीद होगा। एक आदमी जो वो लूट मार करता है, डाकू पकड़ लेते हैं, कराची में लोग मार देते हैं, वो शहीद हो गया। अब एक ने पूरी उम्मत का माल खा लिया, अगर उसको लोग मार देते तो शहीद तो नहीं होगा। एक ने एक शख्स को लूटने की कोशिश की और किसी ने उसको मार दिया, तो वो तो शहीद नहीं होगा। यूजर भाई क्या ख्याल है आपका? हजरत उस्मान के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो यूजर भाई, तो वो आयत हमने जब वो आयत पढ़ ली है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, नहीं हजरत उस्मान के मुतल्लिक आपका क्या राय है? क्या वो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला की राह में कत्ल किए मैंने गए। हजरत उस्मान पर सवाल किया है। हजरत उस्मान का जो कत्ल हुआ है, अल्लाह ताला की राह में कत्ल नहीं हुए। कौन सी जहाज में कत्ल हुए हैं? वो एक लंबी अलग सी बहस। नहीं, आप मुझे कौन सी समझाइए। जहाज में कत्ल हुए हैं भाई? अल्लाह की क्या राह में है? कत्ल हुए हैं। सुने, अब सुने यूजर भाई, अच्छा, इसको मायना करना, भाई- जो तारीख भाई में देखें, लिखा हुआ है मैं वो बयान करूंगा। देखें, जो सुन लेना, जो पूरी बात तो सुनो सुन लेना भाई। आप भी जब तो बात सुने पूरी भाई। हो रही है, आप मुझे खुद जो- रोकते हैं, तो मेरी तो पूरी बात हो जो रही है। आपका बिलीफ मेरी बात भी तो पूरी होने दिया करें प्लीज। जब मैं बात करता हूं तो मुझे भी हक देंगे, मैं भी अपनी बात पूरी कर सकूं। हजरत उस्मान का जो कत्ल हुआ है, अगर बकौल आपके बात सच्ची है तो इतने असहाब मौजूद थे, तो यहूदियों के कब्रिस्तान में हजरत उस्मान की लाश क्यों पड़ी रही और वो यहूदियों के कब्रिस्तान में दफनाए गए? क्या वजह है? अगर वो इस्लाम पर अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं तो सारे सहाबा मौजूद थे, इतने सहाबा की तादाद मौजूद थी, तो यहूदियों के कब्रिस्तान से निकाल के मुसलमानों के कब्रिस्तान में क्यों नहीं दफन किया गया? इतने दिन पड़े रहे उनकी लाश, जो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा सवाल आप पर खड़ा हो गया। और यूजर भाई क्या करेंगे? वो बहस का मामला है जिसके अंदर मेरा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ना किसी का इनकार कर रहा हूँ ना किसी का इकरार कर रहा हूँ। मैं आपकी राय पूछना चाह रहा हूँ दोस्त कि भाई आपका क्या बिलीफ है कि क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उस कैटेगरी में आए और वो अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा है? यकीनन आए होंगे, और कुरान पाक में आयत जो आ गई उसके ऊपर तो दो राय हो नहीं सकती।
तो मैं सिर्फ समझे ना, आम जुबान में जैसे कहते हैं ना कि मोटा मोटा ये चंद एक सवाल आते हैं, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें कि आपका बिलीफ क्या है, कि क्या हज़रत अली ज़िंदा हैं, आज ही ज़िंदा हैं जी, और क्या वो मदद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वो हमारी हेल्प भी करते हैं, तो क्या बाकी साहबा कराम जो हैं वो भी उस मामले में आए, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे हैं, और क्या हम उनसे डायरेक्टली मदद मांग सकते हैं कि नहीं। तो ये चंद एक बातें, और दोबारा मैं बता दूं भाई, मैं मुकम्मल एहतराम के साथ ये बातें पूछ रहा हूँ, और सिर्फ तालिब इल्म होने की हैसियत से। यकीन माने हम जितने एहतराम से आप पूछ रहे हैं ना, उससे डबल एहतराम में जवाब दे रहे हैं। खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आपका पूरा हक है। देखिए, आप रसूल अल्लाह से शुरू करते हैं, ठीक है? क्या आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त हयात मानते हैं या वफात मानते हैं? बिस्मिल्लाह। भाई मेरी राय क्यों पूछ रहे हैं, पीछे वो दोबारा सवाल दर सवाल। अब ये देखिए सही दफा नोट कर रही हैं आप मोहतरम को। मेरे भाई मैंने बाबी मान सर मैं आपको बाबी मान सर यूजर भाई जो है ना बेसिकली लेक्चर सुनना चाहते हैं। यूजर भाई अगर आपको इस तरह मतलब नॉलेज चाहिए ना जिसमें कॉन्वर्सेशन ना हो, तो इसका सबसे आसान तरीका होता है आप डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, वो आपको उसमें कोई सवाल जवाब आपसे नहीं करेगी। लेकिन जब इस तरह कॉन्वर्सेशन में आप बैठे होते हैं ना, तो इसी तरह बात होती है, ताकि हमें पता लगे कि आप कब क्या दिमाग किस तरह प्रोसेस हो रहा है, चीज़ को किस तरह ले रहे हैं, फिर उसी के मुताबिक बात होती है। आई डोंट नो कि आप इस तरह क्यों हैं, मतलब यू आर द वेरी फर्स्ट पर्सन जो इस तरह से आके हमसे बात कर रहा है कि मुझसे कुछ भी मत पूछो, तुम सिर्फ बात करो। भाई वो तो फिर आप जाके डॉक्यूमेंट्रीज प्ले करके देख लें, उसमें कोई भी आपसे सवाल नहीं करेगा। अरे भाई जब मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल एक आम सी बात है ना कि अगर मैं मोहतरम से पूछूं जनाब आपका नाम क्या होगा, जी मेरा नाम छोड़िए आपका नाम क्या है, नहीं यूजर भाई दिस इज अ कैटेगरी एरर, लॉजिकल फैलेसी में से कैटेगरी एरर कहते हैं। ये सवाल, ये जो बात आपने किया ना, ये पिछले वाले टॉपिक से बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो है। बाबी मान सर वैसे एक सेकंड में आपका पॉइंट इनको दे देती हूँ। बाबी मान सर कोशिश करें इनको कुछ भी सवाल ना करें और बस सिर्फ बोलते रहें। जी चलिए ठीक हो गया। सीधा सिस्टर देखें, जब तक मैं किसी चीज को कि जब कोई दलील कायम नहीं होती ना, जब एक बंदा सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस दलील को एक्सेप्ट किए बगैर कोई बात करेंगे तो वो बेमानी होगी, बेफायदा होगी। तो मैं भाई से सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था कि बजाय किसी और पर बात करने से पहले हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मीज़ान बनाते हैं, एक कानून बना के उसको लेके चलते हैं आगे। तो क्या मेरा ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि इनका जो अकीदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है, क्या ये उनकी मदद के कायल हैं या नहीं? अगर उनकी मदद के कायल हैं तो क्या वो मदद जो है वो एज ए हयात के मानी में लेते हैं या वफात के मानी में लेते हैं? और अगर वफात के मानी में लेते हैं तो उस मदद का मानी क्या है? तो ये सवालात सिर्फ और सिर्फ इनके अकायद, इनके नजरियात की बुनियाद पर, इनकी जो कानून इनके पास लागू हैं, उन कानून को लेके आगे सफर करने के लिए मैंने सवाल किया था। और अगर ये नहीं इसको जवाब देना चाहते तो तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उनसे दोबारा रजू करता हूं, अगर वो इस बात को समझ गए हैं कि यहाँ सवाल करना किसी और मानी में नहीं, सिर्फ आपके अकायद और नजरियात और कानून को जानने की वजह से मैं ये सवाल कर रहा हूँ। जी बाबर भाई मेरा ख़ास सलाम आपके लिए, माशाल्लाह आपका एहतराम भी है भाई, आप सीधा साहिबा के उस्ताद भी हैं, और एक का उस्ताद सबका ही उस्ताद होता है भाई, और मेरा ख़ास एहतराम आपके लिए। और मैं दोबारा सिर्फ ये अर्ज़ कर दूँ कि भाई कोई अकीदे के मसाइल के लिए मैं सवाल नहीं पूछ रहा, कोई किसी को नेगेट करने के लिए सवाल नहीं पूछ रहा, सिर्फ मालूमात में इजाफे के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। और बहुत से लोग डरते रहते हैं, बात ही नहीं करते क्योंकि यार वो बहस में मुब्तला हो जाती है। तो मुझे आप सिर्फ एक तालिब इल्म की हैसियत से देखें, और जो सवाल मुझे थोड़े से मैंने करेक्ट किए हैं इनको अगर इनके मुख्तसर से जवाब दे दें कि हाँ भाई ये इस तरह है, ये इस तरह है, वैसे है, इसको इस तरीके से अगर आप जवाब दे पाएँ तो बड़ी नवाजिश होगी। जज़ाकल्लाह। देखिए मेरे भाई फिर क्योंकि मजबूरी है कि जब कोई बात करेंगे तो सवाल की शक्ल में ही उस बात को शुरू करना पड़ता है। मैं ये बात दोबारा और आसान कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ आपके किसी अकीदे की बुनियाद पर या नज़रियात के मुताबिक नहीं, मैं एक कानून की बुनियाद पर सवाल को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आपकी नज़र में हयात का मानी क्या है और वफात का या मौत का मानी क्या है, ताकि ये लोगों के सामने जब वाज़ेह हो जाएगा ना
تو پھر ہم اس پر بات کریں گے تو فائدہ ہوگا. اگر مجھے حیات اور موت کا ہی علم نہیں تو کوئی گھنٹہ بولتا رہے گا تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقیناً یہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو پلیز اس پر تو میری مدد کر دیں. حیات کا معنی اور موت کا معنی بیان کر دیں کہ آپ کی نظر میں حیات کا معنی کیا ہے اور موت کا معنی کیا ہے. بسم اللہ. میری مہربانی مجھے تھوڑی دیر بعد ہنسی آ جاتی ہے وہ، اور میں آپ کے اوپر نہیں ہنس رہا ہوں، میں ویسے ہی ہنس رہا ہوں. میں تھوڑا سا خوش باش طبیعت کا آدمی ہوں کہ یار کی بات کو ہمیشہ بہت سیریس بھی ہونا چاہیے. بھائی جان دیکھیں یہ پاگلوں والی حرکت ہے نا کہ کوئی آپ کے ساتھ علمی گفتگو کرتے ہیں اور آپ آگے یہ خدا کی قسم یہ دماغ کی نہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی پرابلم کو بھی سمجھ رہا ہوں اور آپ یقیناً کسی بھیا نہیں یہ پاگلوں والی حرکت ہے نا کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ علمی گفتگو کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں دے رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی احادیث دے رہے ہیں، بات تو سن لو پوری بھائی. اب دیکھو نا ٹائٹل دینے میں ایک تو منٹ لگاتے ہو آپ، ٹائٹل دینے آ گئے آپ جناب، سرٹیفکیٹ بانٹنے آ گئے، یہ پاگل ہے وہ پاگل ہے. سرٹیفکیٹ میں نہیں دے رہا، یہاں 25 لوگ بیٹھے خدا کی قسم سب آپ پہ یہی قیاس کر رہے ہیں کہ آپ پاگل ہیں. صبر 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 صبر، حوصلہ بڑا حوصلہ کہ یہاں پر اگر ہم یہاں پہ میں آپ کی توجہ صرف اور خوش مزاجی سے اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جو سوالات ہیں آپ کو، اگر آپ کا کوئی نالج ہے اس بارے میں، حیات وغیرہ کے بارے میں اور وفات کے بارے میں، جو آپ کا پوائنٹ آف ویو وہ آپ بیان کریں. اور وہ میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آگے سے آگے جس طرح آپ جاتے جائیں گے، ضرور ہم آگے شاید گفتگو لمبی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جو سوالات میرے ہیں اگر ان کے بارے میں آپ ذرا نا سینٹر کر کے وہ خدا کے بندے انہی سوالات کے جواب کے لیے تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ پہلے تو پتہ چل جائے کہ آپ کے نزدیک، آپ کے عقل میں حیات کا کیا معنی ہے، وفات کا کیا معنی ہے، موت کا کیا معنی ہے. یہ تین چیزیں، میں نے صرف دو چیزوں پر سوال اٹھایا، وفات اور حیات، کہ آپ کی نظر میں حیات کیا ہے. چلے وفات کو بھی چھوڑ دیں، موت کو لے لیں. آپ کی نظر میں موت اور حیات کا معنی کیا ہے. پھر میں قرآن سے آپ کے دیے ہوئے معنی کو دیکھوں کہ قرآن آپ کے دیے ہوئے معنی کی تصدیق کر رہا ہے یا رد کر رہا ہے. تو پھر آگے لے کے چلیں گے، چاہے رسول اللہ پر بات کریں، چاہے حضرت علی پر بات کریں کہ وہ حیات ہیں یا وفات پا گئے ہیں. حیات ہیں تو کس طرح حیات ہیں، وفات پا گئے ہیں یا موت آ گئی ہے تو کس طرح. پھر اس قرآن کے دیے ہوئے معنی کو لے کے چلیں گے. تو خدا کے لیے پر آپ احسان کریں، موت کا اور حیات کا معنی بتا دیں کہ آپ کے پاس موت کا اور حیات کا معنی کیا ہے. چلیں بتا دیں. بسم اللہ. بہادر بھائی دوبارہ میں احترام سے کہوں گا، میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، آپ بتا دیں. بسم اللہ. یوزر بھائی ہم آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجیے سیدھا سسٹر، کوئی بات نہیں. چلے بھائی جان نیچے بیٹھ کے نا ٹیپ کرے جس طرح دوسری پلاٹ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی چھوڑ دیں، چلیں ہم بات کرتا ہوں. میں سیدھا سسٹر دیکھیں گی، میں آپ کو جنرل، میں نے، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے اس شخص کو بڑا برداشت کیا اور اس کے اندر بالکل تمیز نہیں ہے. کوئی بات نہیں. ہر خود ہی بندہ یہ ایک کہتا جیسا ہے کہ میں نہیں. طالب علم ہوں اور خود ہی جو ہے سوال، دیکھیں کلاس کا ایک اصول ہوتا ہے جب استاد، معصوم چھوڑ دے، میں کوئی بات کر رہا ہوں، کوئی ضروری بات کر رہا ہوں. سیدھا سسٹر میں آپ کو مخاطب کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں پہلے سب سے پہلے قرآن سے موت و حیات کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی. سیدہ سسٹر، آپ کی نظر میں جس کو آپ موت سمجھتی ہیں نا، جی اور اس سے مراد صرف آپ نہیں، بہت سے اور لوگ بھی ہیں، جی. وہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے نا، بے جان ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو موت کہتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، موت ہو گئی اس کو. جی بالکل. اچھا دوبارہ سے سن لیں، قرآن کی نظر میں چلتے پھرتے جو لوگ ہیں نا، قرآن ان کو مردہ کہتا ہے. جس کو آپ زندہ کہہ رہی ہیں، قرآن اس کو مردہ کہہ رہا ہے، اور جس کو آپ مردہ کہہ رہی ہیں، قرآن اس کو زندہ کہہ رہا ہے. اچھا جی، یہ سوال میں نے اس لیے اس بھائی سے کیا تھا تاکہ وہ بھائی پہلے موت اور حیات کا معنی بیان کر دے نا، تو پھر رسول اللہ اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی پر جو مدد کی بات انہوں نے سوال اٹھایا، پھر اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اب قرآن کی نظر میں مردہ کون ہے؟ قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سیدہ سسٹر، مردہ وہ ہے جو خدا کے دیے ہوئے
علم اور عقل کو استعمال نہیں کرتا، چاہے وہ زندہ بھی ہو، چلتا پھرتا بھی ہو، کھاتا پیتا بھی ہو، تو اللہ اس کو قرآن میں مردہ قرار دیتا ہے۔ صحیح۔ اور قرآن کی نظر میں جو شخص بھی خدا کے دیے ہوئے عقل اور علم سے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے باز آ جائے اور جائز کام جو اس نے حکم دیا کرنے کی وہ کرتا ہے، تو وہ خدا کی نظر میں زندہ ہے، وہ ابدی ہے، صحیح۔ اور یہ ابدی ہی ابدی جنت میں جائے گا۔ واہ، سمجھ آ گئی، یعنی کہ یہ جسم کی زندگی اور موت نہیں۔ جزاک اللہ۔ تو یہ حیات ابدی حیات ہے، اور یہ ابدی حیات جنت میں تبدیل ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ابدی حیات میں مدد ہے یا نہیں، اور اگر یہ مدد ہے تو کس معنی میں مدد ہے؟ تو اب وہ بھائی جان جو ہے وہ اس سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کا کوئی امتحان لے رہے ہیں۔ خدا گواہ ہم کوئی امتحان نہیں لے رہے تھے، صرف بات کو پہنچانے کے لیے کہ قرآن کس چیز کو زندگی کہتا ہے اور کس چیز کو موت کہتا ہے، اور پھر اگر کوئی مر جائے خدا کی راہ میں تو اس کو جب شہید کا درجہ عطا کرتا ہے تو اس زندگی میں کتنا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ یعنی ایک آلریڈی ہی زندہ ہے، لیکن شہادت یعنی کہ خدا کے حلال چیزوں پر عمل کر کے اور حرام چیزوں سے رک کے اس نے زندگی تو پا لی ہے، لیکن اگر وہ خدا کی راہ میں شہید ہو جائے تو اس کو اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ تو اب یہ دو الگ الگ پہلو ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مدد جس مدد پر انہوں نے سوال اٹھایا، وہ مدد کس معنی میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ کیا لین دین ہاتھوں سے لین دین والی مدد، یا پوشیدہ طور پر مدد؟ مثال کے طور پر علم کو موت نہیں، اس پر تو یقیناً کسی مذہب کی قید نہیں ہے سیدہ سسٹر۔ جی بالکل۔ یہ کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہے کہ جو کہے کہ نہیں علم نہیں مرتا، یعنی جو کسی مذہب کو مانتا ہے وہ بھی، جو کسی مذہب کو کسی خدا کو نہیں مانتا وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ علم کو موت نہیں ہے، اور علم ہمیشہ مدد کرتا رہتا ہے۔ بے شک۔ اس مدد کا کوئی انکاری ہے؟ نہیں۔ غیر مذہب بھی ہو، لا دین بھی ہو۔ اب سائنس کو لے لے، سائنس کے اندر بہت سے لا دین ہیں، ایسا ہی ہے سیدہ سسٹر؟ جی بالکل۔ کیا وہ دیگر جو ان سے پہلے گزرے ہوئے سائنسدان جو دنیا سے مر گئے ہیں اس کے علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا ان کا علم زندہ ہے یا نہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے بابا مان سر، کیا ایگزامپل ہے۔ تو اب میں اس بھائی کو یہ سوال ان کی واضح کروانا چاہ رہا تھا کہ میرا بھائی پہلے سوال تو واضح ہو کہ آپ کا سوال کس مدد کے تحت ہے۔ ایک دوسرا یہ تھا کہ آپ کی نظر میں حیات ہے کیا چیز؟ ہو سکتا ہے جس کو آپ حیات سمجھ رہے ہو خدا اس کو موت سمجھے، اور جس کو آپ موت سمجھ رہے ہو خدا کی نظر میں وہ حیات ہو۔ تو جب آپ کو خود کلیئر نہیں، جب تک خدا اس کو کلیئر نہیں کرے گا کہ خدا کی نظر میں موت کیا ہے اور حیات کیا ہے، اور جس کو آپ مردہ سمجھ رہے ہو خدا کی نظر میں تو وہ حیات ہے، صحیح صحیح۔ تو آپ اس خدا کی نظر میں جو حیات ہے اس کی مدد کا انکار کرو گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے بابا مان سر۔ تو خیر وہ چلے گئے ہیں، چلیے اب میں مختصر کرتا ہوں۔ بسم اللہ، آپ بات کریں، بسم اللہ۔ نہیں، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بابا مان سر آئی تھنک، اور ایک اور یہ بھائی ہیں نعمان محمد، کیا نام ہے، محمد نعمان عدیل قادری۔ تو ہاں تو بردر اگر آپ آرام سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی تلخ کلامی نہیں کرنا چاہتے تو بتائیے، ورنہ بہت ساری لائف لگی ہوئی ہیں۔ تو بابا مان سر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم جو ہے بیسیکلی جس کو موت سمجھ رہے ہیں وہ قرآن پاک کے نزدیک موت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ زندگی ہے، اور وہ علم کی صورت میں بھی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علم فنا ہے نہیں، علم جو ہے کبھی اس کو ختم نہیں ہوتا، ہمیشگی حاصل ہے علم کو، اور
مرنے کے بعد بھی ان کا علم کام آتا ہے. تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی علیہ السلام کے علم سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ظاہری طور پر تو کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں نا کہ ظاہری طور پر ہم یہ دعویٰ کریں کہ مولا علی علیہ السلام سے کل میں ملا اور انہوں نے مجھے آ کے مجھے یہ چیز دی یا وہ چیز دی. ہم کس چیز کا قائل ہیں؟ مدد کے قائل ہیں. اور مدد ایک طریقے سے نہیں ہوتی، ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے. اور میں نے دلیل بنایا باطنی مدد کو علم کے ذریعے. جی بسم اللہ، محمد بھائی آئے. السلام علیکم محمد بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی آپ جاری رکھیں، ماشاءاللہ کافی علمی گفتگو ہو رہی ہے تو میں سن رہا تھا. میں نعت خواہ ہوں اور منقبت خواہ ہوں چکوال پاکستان سے. تو میں جب آیا تو وہ بات چل رہی تھی تو مجھے اچھا لگا گفتگو، تو میں نے کہا مجھے بھی آپ پک کر لیں. تھینک یو. بہت شکریہ جی. جی باب ایمان سر. دیجیے میسج لکھ رہے ہیں کہ سیدہ بہن ناٹ نائس ٹو ڈسکنیکٹ مائی کال. بہرحال جزاک اللہ خیر. چلیں کوئی بات نہیں بھائی، ہم نے ظاہر ہے کہ آپ کسی چیز کو الجھن بنا رہے تھے تو ہمارا مقصد یہاں آپ سے الجھنا نہیں تھا، بلکہ ہم آپ سے جو چیز آپ جانتے تھے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو چیز آپ نہیں جانتے تھے ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم قرآن سے وہ آپ کے سامنے رکھیں. باب ایمان سر چلے گئے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں ہے. جی صحیح. اچھا جی، ہم جو ہے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کویشچن آیا کہ علی علیہ السلام اگر شہید ہیں تو شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن اس سے مدد کیسے لی جا سکتی ہے. تو اس کے تھوڑے سے باب ایمان سر جو ہیں اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے دل سے مانتے ہیں سیدہ سسٹر، جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جو مجھے ماننے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں. تو آپ نے میری مدد کر دی. اب جو آپ نے میری مدد کی ہے کس کے کہنے پر کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ. تو حقیقی مدد کس کی بنی؟ رسول اللہ کی. جزاک اللہ. صرف فرق کیا ہوا؟ مدد کا طریقہ بدلا کہ رسول اللہ نے آپ کے ذریعے میری مدد کروا دی. یہ ہو گیا ایک طریقہ مدد کا. صحیح. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے بس میں بھی وہ مدد کرنا نہیں تھا، تو رسول اللہ نے خود میری مدد کر دی. صحیح. یہ دو مدد ہوگی. اب یہ جو خود مدد کی، یہ ظاہر خود آ کے مدد کی یا آپ کی جگہ کوئی اور وسیلہ استعمال کر دیا مدد کرنے کے لیے؟ صحیح. اب قرآن کی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار عطا کر. رسول اللہ کہہ سکتے تھے نا کہ اے اللہ پوری کائنات کا تو خالق ہے، میری مدد پوری کر. کائنات کی مدد کرنے والا ہے، تو میری مدد کر. بالکل. تو رسول اللہ نے ہم کو کیا طریقہ بتایا کہ جب بھی مدد ہوگی وہ وسیلے کے ذریعے ہوگی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھا یہاں پہ میں بھی ایک بات ہو رہی ہے تو اس میں تو قرآن کی ایک اور آیت پاک ہے کہ اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور یہاں پہ آ کے مجھ سے معافی طلب کرو تو میں بخش دوں گا. میرے حبیب بھی چاہیں گے. مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کا بیشی معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جب گناہ کرو تو رسول پاک کی بارگاہ میں ہو. اچھا قرآن تو قیامت تک ہے. اب کوئی اگر یہ سوال کرے جی نہیں وہ تو صحابہ کو کہا تھا، تو ایسی بات تو نہیں ہے. قرآن تو قیامت تک ہے.
آج بھی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو جب سرکار سے اس کے وسیلے سے وہ مدد مانگتا ہے، اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، اے حبیب آپ بھی چاہیں گے تو میں معاف کروں گا۔ اب یہ جو چاہنا ہے، جب تک نہیں چاہیں گے تو وہ معافی کیسے ملے گی؟ تو جب چاہیں گے تو مدد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی بے شک ہوگی، بے شک۔ ایک پوائنٹ لیجئے گا میرا، جس طرح بھائی نے کیا کہ سر جی قرآن پاک کی جس آیت کی طرف یہ بھائی اشارہ کر رہے ہیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، سو وہ میرے محبوب کے در پہ آئے اور مجھ سے سوال کرے، ٹھیک ہے، معافی کی طلب کرے اور میں معاف کر۔ سر جی گناہ ایک کرنا اور ایک اپنی جان پہ ظلم کرنا، سر جی یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ، اس کو ذرا وضاحت فرما دیں یہاں پہ۔ دیکھیے جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ، اب اس گناہ کو میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک ہے میرا آپ کو نقصان پہنچانا معصوم، جی سر جی، اور ایک ہے اپنی ذات کو نقصان پہنچانا۔